So hi everyone, today we will be discussing an important topic which is prevailing over the current scenario. You can see over the screen 70 hours of work week. This is one of the conundrum which is being contested and everyone has a opinion about it. So you can see there's one quote over the screen that India's work productivity is one of the lowest in the world, and unless we improve our work productivity, we will not be able to compete with those countries that have made tremendous progress. My request is thus that our youngsters must say, "This is my country and I want to work 70 hours a week," exactly how Germans and Japanese did after the Second World War. So this was said by one of our important business tycoon, we all know, Shri Narayan Murthy. So he is the founder of Infosys. So today we will discuss this thing in great detail. That what are the reasons of this topic, like why this topic have surfaced right now over the current discourse. So we'll understand the discourse of it, the epistemology of it, and a bit of other factors and the root causes. Whether this is feasible or not. So we will go deep dive into this particular topic and let's see that what's our learning and what could be the way forward, whether it is right or wrong. So we will discuss it in great detail. So first of all, we will discuss why this comment came. So the reasons may be wide, right? So first we will discuss few reasons why this comment has been made right now. मतलब I would like मतलब कारण क्या है इस 70 घंटे प्रति सप्ताह हमें काम करने का जो श्री नारायण मूर्ति जी ने सुझाव दिया है कि युवाओं को 70 घंटे प्रति सप्ताह काम करना चाहिए, तो इसका कारण क्या है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रीजंस. Now the reasons are, first of all, the most important reasons are, we are a developing country, right? We are a developing country, first of all. Second, we aspire to be a $5 trillion economy, by 2025, 26 around, and also a developed economy by 2047. Third, we have a huge demographic dividend, as we all know. Majority of the persons are below under, you know, 35 years of age. So it is an apt time. This is an apt time to reap in those benefits. But again, why the discussion right now? The demographic dividend was, a bit from earlier. Concern is that currently we have now started in startup ecosystem. ये startup का जो ecosystem है, ये develop हो गया हमारे around. Like no more with respect to government jobs. People are not respected, are not restricted. Towards these government jobs. There is more urge, right, of generating the jobs. So entrepreneurial spirit, basically, if we talk, entrepreneurial spirit of the country is rising. There are various methods to develop your capabilities, and overall you can work in the beneficiary way to develop the economy as well as yourself, so that the country as well as you personally prospers in this current era. And this has started way back in 1992, post 1992 liberalization. But currently there have been various structural reforms in our system, which ensures that we can aspire for a developing country. The ease of doing business have also been developed, so as to reaping these benefits. So this is the broad framework of why this quote, why this statement was given by Shri Murthy. So this was important. Now first we will understand, he has categorically discussed about this one terminology, productivity. Okay, 70 hours, what it will do? Productivity. So when we discuss about a productivity, we need to understand what does this productivity means. It cannot be in silos, no? We cannot discuss productivity in silos. We need to understand what does this productivity mean. So productivity is a very important parameter, It is the optimized utilization of resources, both capital as well as your non-capital resources. So this optimum utilization of these resources is known as productivity in layman terminology. But we need to understand whether there is only one type of productivity which prevails, or whether as a country or as a nation we just require one type of productivity, which is labor productivity. Productivity has various facets. First is labor productivity. Second is capital productivity. And third is various total factor
productivity. So we would first understand what does this productivity means for a country like our. So अगर मैं बेसिकली समझूँ तो लेबर प्रोडक्टिविटी वही है जो मूर्ति जी कहना चाह रहे हैं 70 आवर्स पर डे पर वीक पर वीक if you work, so it will increase our labor productivity. Suppose, okay, right, we assume that working 70 hours per week will enhance the productivity. But what about this capital productivity and total factor productivity? Because productivity has these three elements broadly. There are various elements also which I have taken under the consideration of this total factor productivity. तो अगर हम मान भी लें कि 70 घंटे प्रति सप्ताह हम काम करके भी लेबर प्रोडक्टिविटी इंश्योर कर लें जो चाहिए, बट कैपिटल प्रोडक्टिविटी और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आ जाएंगे, मतलब इसको क्या हम मिट करने से ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये मिट कर जाएंगे? आई डोंट थिंक सो वो होगा नहीं। तो लेबर प्रोडक्टिविटी पे तो हम बात कर सकते हैं, बट कैपिटल प्रोडक्टिविटी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी पे एक ओवरऑल सिस्टम थिंकिंग की ज़रूरत है। एंड लेबर प्रोडक्टिविटी में एजम्पशन की है कि ये जो 70 आवर्स ऑफ वर्क है इससे लेबर प्रोडक्टिविटी मिट कर जा रहा है, जो कि हम आगे देखेंगे कि वैसा ज़रूरी नहीं है। प्रोडक्टिविटी बस नंबर ऑफ आवर्स से डिसाइड नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 3 पैरामीटर्स हैं टू डिसाइड द प्रोडक्टिविटी। सो वी विल टेक जस्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है लेबर प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। सो फॉर टेकिंग एग्जांपल, अगर हम माने कि सपोज देयर इज अ कंपनी, राइट, एक कंपनी है ABC कंपनी एंड इसके अंदर एम्प्लॉयज़ होंगे, राइट, आई एम रेफरिंग हियर मैन, एम्प्लॉयज़ होंगे, इसके अंदर कुछ मशीनरीज भी होंगे, है ना, मशीनरीज होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, अदर वेरियस एसेट्स होंगे, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल एसेट्स, उनको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल प्रोडक्टिविटी ये इंश्योर कर, मतलब कैपिटल प्रोडक्टिविटी का ये मतलब है कि वेदर आपके ये जो सिस्टम्स हैं ये काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये क्या एफिशिएंट है, ये जहाँ से बन के आ रहा है क्या वो कॉम्पिटिटिव है, क्या इनकी एफिशिएंसी मशीन्स की टू बी वेरी पर्टिकुलर, क्या ये इफेक्टिव है। तो ये भी उतना ही रोल प्ले करेगा जितना आप एक मैन की और लेबर की प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो कमिंग टू दिस टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, इसमें सब आ जाएगा। आपका एक इन्वायरमेंट आ जाएगा ऑल अराउंड, आपका HR पॉलिसीज़ आ जाएंगे कि आप कैसा ट्रीट करते हो, आप कंपनसेशन कितना देते हो, है ना। अब इन्फोसिस में बात तो बहुत अच्छी हो रही है, बट इन्फोसिस का क्या एंट्री लेवल CTC है ये हमें पता है, 3.5 to 4 LPA। तो ये कहीं से भी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कंसिडर करके तो नहीं रखी गई है। सो एक तरीके का ये मॉडर्न स्लेवरी बोल सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को ले रहे हैं फिर आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो देन टू यू आर जस्टिफाइंग दिस प्रोडक्टिविटी वाला कंसेप्ट। बट अगर आप प्रोडक्टिविटी को बस एक साइलोज में, वो भी एक लेबर प्रोडक्टिविटी की टर्मिनोलॉजी में देख रहे हैं, और वो भी इंश्योर ये नहीं हुआ कि वर्किंग आवर्स को बढ़ाने से वो इंश्योर हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो वी आर वर्किंग इन साइलोज। द स्टेटमेंट जो मेड बाई मूर्ति, हु इज ऑफ कोर्स मोर एक्सपीरियंस एंड ही हैज सीन द वर्ल्ड इन अ मोर ब्रॉडर फ्रेमवर्क दैन अस, ऑफ कोर्स, तो कुछ बात होंगी, हिज इंटेंशंस में नॉट बी रॉन्ग, बट उनके स्टेटमेंट को अगर हम प्रोडक्टिविटी से समझे तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस कंट्री पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट होगा नहीं, बस वर्किंग आवर्स को साइलोज में बढ़ा के। अब इसके लिए हमें डेटा पे बात करना होगा। डेटा बेसिकली ये है कि अगर हम बात करें इंडिया का जो वर्कर्स प्रोडक्टिविटी है, तो एज पर अगर मैं बात करूँ ILO रिपोर्ट, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट होता है, उस बेसिस पे जो इंडिया का प्रोडक्टिविटी है, वर्कर का प्रोडक्टिविटी है, वो 48 आवर्स वर्क करने के बाद भी प्रोडक्टिविटी है नियर अबाउट $8 to $9 पर आवर। ये है प्रोडक्टिविटी इंडिया का, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। और वहीं पे अगर हम बात करें 30 आवर्स, ये पर वीक बात हो रहा है, 30 आवर्स पर वीक काम करके भी फ्रांस में, मोस्टली यूरोपियन यूनियन फ्रांस के कंट्रीज़ में, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, आवरली आउटपुट जो है, कितना वो बेसिकली उनका अगर हम बात करें, अगर वो 30 आवर्स पर वीक लगा रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्टिविटी है पर आवर वो अराउंड $58 to $60 आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पर आवर प्रोडक्टिविटी 48 आवर्स को अगर हम बढ़ा के भी 70 आवर्स ले जाएंगे तो भी इसमें सिग्निफिकेंट मैच तो हो नहीं पाएगा ना इस दोनों के बीच में, क्योंकि प्रॉब्लम तो कहीं और है, प्रॉब्लम तो कहीं और है ना। यहाँ भी प्रॉब्लम होगा, वर्किंग आवर्स बढ़ाने में भी हो सकता है प्रॉब्लम होगा, बहुत लोग जितने भी वर्किंग आवर्स है उसमें ही ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो और भी तो कहीं जगह है ना। ये डेटा तो हमें ये शो करता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि परसीव्ड बेनिफिट्स क्या है इसका, मतलब ये सब तो चीज़ें हैं, बट परसीव्ड बेनिफिट्स क्या है। अगर हम बात करते हैं कि ठीक है, अगर हम बाकी सबको कांस्टेंट मान के चले, आई एम एज्यूमिंग मिस्टर मूर्ति हैड गुड इंटेंशंस एंड ही इज ऑल्सो विलिंग टू टॉक अबाउट दिस टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी उनका बेस्ट है ना, ऑप्टिमम है। तो इसको अगर बस ठीक करने से, ट्यूनिंग करने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो उस पर अगर हम बात करें प्रोबेबल बेनिफिट्स, प्रोबेबल है, इसको आप बोल सकते हैं परसीव्ड भी, परसीव्ड बेनिफिट्स। तो पहला तो ऑफ कोर्स है इकोनॉमी। इकोनॉमी आपका बूस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि आपका भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है, आपका बेसिकली जो GDP मेजर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक तो होगा, नो डाउट अबाउट इट, इकोनॉमिक
यू वुड द कंट्री वुड प्रॉस्पर, एज्यूमिंग जो हमने पहले रखा है, एज्यूमिंग दैट थिंग। हमारा कॉम्पिटिटिवनेस ही बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ दैट प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर सेक्टर में, वो भी बढ़ेगा। थर्ड, ऑफ कोर्स टैक्स रेवेन्यूज कंपनी का बढ़ेगा, अगेन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बढ़ेगी, विच विल गिव मोर टैक्स टू द गवर्नमेंट, एंड एक विशेष साइकिल बनेगा हमारे सोसाइटी में। तो ये भी चीज़ें होंगी। फिफ्थ बात करें बिजनेस को लेके, अगर हम ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में होगा, बिजनेस के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो वही है, प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी ये बढ़ेगा, एंड कंपनी विल गेट काइंड ऑफ मोर इनोवेशन, एज्यूमिंग कि दे आर वेरी मच ईगर टू वर्क। अगर वो ऑफिस में 9 बजे आते हैं, एजम्पशन है कि 9 बजे अगर आपका ऑफिस है, तो जिस एनर्जी से 9 बजे आते हैं उसी एनर्जी से वो एग्जिट भी करेंगे आफ्टर हैविंग दैट 14 आवर्स ऑफ वर्क, एज्यूमिंग 70 आवर्स पर वीक का जो कंसेप्ट है। तो ओवरऑल इनोवेशन भी ज़्यादा होगा। इस सब एजम्पशन में चल रहा है कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे। इंडिविजुअल्स के लेवल पर बात करें तो इंडिविजुअल्स जो होंगे, इंडिविजुअल्स के लेवल बात करें तो इंडिविजुअल्स जो होंगे उनको गुड कंपनसेशन भी मिलेगा, है ना। गुड कंपनसेशन से वो सेविंग्स एंड इकोनॉमी में दे कैन क्रिएट अ पॉजिटिव रिपल ओवर इफेक्ट, वो भी कर सकते हैं। उनका फाइनेंशियल गोल जो है वो भी मेट होगा, एंड ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो भी बढ़ेगा। दिस आर द प्रोबेबल बेनिफिट्स एंड पॉसिबल बेनिफिट्स कंसिडरिंग आवर एजम्पशंस। तो ये तो होगा, बट नाउ वी नीड टू फोकस ऑन द डिमेरिट्स, कि डिमेरिट्स क्या है। मतलब वर्किंग कंडीशन को बस, वर्किंग प्रोडक्टिविटी को बस बढ़ाने का तरीका क्या लेबर आवर्स कोड करना है, तो वी नीड टू फोकस ऑन द डिमेरिट्स ऑफ द सेम। डिमेरिट्स की बात करें तो हमें पहले ये बात करना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो पहला है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा बाय WHO, विच सजेस्ट बोथ WHO एंड ILO, यू कैन गूगल ओवर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैव इंक्रीज द डेथ्स फ्रॉम हार्ट डिजीजेस टू द स्ट्रोक, है ना। ये ग्लोबल एनालिसिस है कि अराउंड 4 लाख पीपल डाइड आउट ऑफ स्ट्रोक एंड 4 लाख पीपल हैव सम काइंड ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। So this is a report from WHO itself, and also you can Google it, like Harvard Business Review. There are various documents where you would see the same picture. The picture is very much which painful and which gives a lot of agony, seeing the conditions of the people who are working so long. Some are working by themselves also. Some are working as an essentiality, and some are working as a pursuit to excel in their life or in their any kind of business. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव की बात करें मैं यहाँ पे, आई वुड जस्ट टेल दिस आर द डिमेरिट्स। एक तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड सबसे बड़ा डिमेरिट है कि हेल्थ केयर कॉस्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना, नथिंग कम्स फ्री। इफ यू विल बी अर्निंग मोर, वर्किंग मोर, सो योर हेल्थ कंसिडरेशंस एंड हेल्थ का जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी आपके बहुत होंगे, स्पॉन्डिलाइटिस इन योर नेक, है ना, आई प्रॉब्लम्स। ओवरऑल दिस विल इंक्रीज योर हेल्थ कॉस्ट, सो यू शुड कीप दिस इन माइंड। थर्ड, नाउ फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वर्क बर्नआउट भी होगा, हेल्थ कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो बिजनेस में क्या फोकस होगा कि बिजनेस तो ह्यूमन ही करेंगे ना, पीपल विल वर्क। ओवरऑल बिजनेस भी जॉल्ट होगा, इनका जो फंक्शन है वो भी बहुत डाउन आएगा, क्योंकि अगेन सिक लीव ज़्यादा लेंगे, है ना। ओवरऑल थोड़े समय के लिए बढ़ेगा, वो एक कहते हैं ना, बेसिकली आई वुड अंडरस्टैंड यू कि कोई भी चीज़ बढ़ता है शुरू में, बाद में वो डिक्रीज होता है, क्रिजनेट कर्व होता है बेसिकली ये। इनिशियली आप कोई चेंज लाओगे तो बहुत अच्छा एक्सेल करेगा, ऊपर जाएगा, एंड एक बार जब ऊपर चला जाएगा तो लॉन्ग टर्म में अगर आपका इनिशियल जो स्पेकुलेशन है उसमें अगर फॉल्ट है, तो अगर आपने पूरा सिस्टम थिंकिंग नहीं किया तो वो नीचे आएगा, बिकॉज इनिशियली पीपल डोंट नो कि उसका रेमिफिकेशंस कितना होगा। सो भाई सिक लीव्स बढ़ेंगे तो बिजनेस टर्न डाउन होंगे। थर्ड क्या होगा, थर्ड एब्सेंटिज्म, वर्क लाइफ। अब देखो, अब आप कोई बंदा है जो ऑफिस में काम करता है, वो अगर बार बार सिक लीव लेगा, क्योंकि आपको तो आपने ये कंसेप्ट दे दिया है, ये अप्लाई भी हो गया, हेल्थ केयर कॉस्ट भी बेचारे का बढ़ रहा है, या फीमेल जो भी उनका बढ़ रहा है, बिजनेस भी उनके साथ मैनेजर्स वोंट ट्रीट हिम in a good way if you would be taking or she would be taking more sick leaves, so entire work life will be hampered. अब मैं एक छोटा सा मैथ्स करके बताता हूँ, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग जस्ट स्मॉल मैथ्स हियर, स्मॉल मैथ्स। इफ ही इज वर्किंग से 14 आवर्स, एक सेकेंड, 14 आवर्स पर डे, ठीक है, ये वर्क हो गया, वर्क आवर्स, ठीक है। 7 आवर्स बेसिक स्लीप तो लेगा वो, ठीक है, एज्यूमिंग, ठीक है। उसके बाद मैं एज्यूम बस ये क्या हूँ कि 5 डेज वर्क है, ये इंपॉर्टेंट है, 6 डेज वर्क भी होता है तो फिर ये बढ़ जाएगा यहाँ पे, ये वाला चीज़ है। तो जैसे 70/5, यहाँ से ये 14 आया, 7 आवर स्लीप लेगा जो भी होगा। 7 आवर स्लीप लेने के बाद 2 आवर्स उसको बेसिक जो भी है, बेदिंग, टेकिंग केयर ऑफ हिज लाइक बेसिक फूड दैट आइटम्स ईटिंग, तो कितना हो गया 23 आवर्स। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, कितना बचा, जस्ट 1 आवर फॉर व्हाट, रिक्रिएशन एक्टिविटीज, recreational activities, mental
mental, you know, second, mental clarity, है ना, fusion of his other responsibilities. Just he has or she has just 1 hour according to this policy. So is it right? I don't think so. This is an entire wrong concept of increasing the working hours and ensuring that the overall productivity of the organization would increase, and therefore the Indian economy would boom. So this is a very wrong non-systemic thinking. So ये लिमिटेड है पूरा फैमिली सिस्टम में जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था इंपॉर्टेंट वर्क लाइफ फैमिली सिस्टम जो है दैट वुड रिटार्ड टोटली रिटार्ड हो जाएगा विच वी हैव सीन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक ऑल्सो राइट. सो बहुत ही क्लियरिंग पिक्चर बन जाएगा अगर आप सिस्टमिक थिंकिंग के बिना इसको ओवरऑल अप्लाई कर रहे हो तो चीज़ें वुड नॉट वर्क इन द डायरेक्शन और द इंटेंट विच यू वांट टू अदर. सो ये प्रॉब्लम रहेगी इसमें. अब कंसर्न ये है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि ये कंसेप्ट का एक और डिमेरिट क्या है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमेरिट इज कि करंटली हम कितना 8 आवर वर्क कर रहे हैं. 8 आवर्स पर वीक वी आर वर्किंग, 8 आवर्स पर डे, सॉरी 8 आवर्स पर डे वी आर वर्किंग. सो क्या ये 8 आवर्स में रह पा रहा है? स्पिलिंग ओवर हो रहा है ऑलरेडी भाई, स्पिलिंग ओवर हो रहा है. Now no one is working right from like say 9 a.m. your office starts 9 to 12, right? You have 3 hours, right? Then 12 to 5 or 12 to 6, right? Supposing 8 hours per day. So is everyone returning to their office at 5 p.m. or 6 p.m. or 7 p.m. at least? No. The work is already spilling over, right, to the family time, which is to the present prescribed rules. It is already spilling over. So how is it possible that this 14 hours per day won't spill? And here you don't have any scope of spilling over also. This is the basic necessities as a homo sapien you need to follow. अब इसमें spilling over होगा तो कहाँ जाएगा? आपका स्लीप खराब होगा, आपका बेसिक एक्टिविटीज खराब होंगे, तो आप क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी में काम करोगे, क्या आप नेशन बिल्डिंग में काम करोगे? तो टोटली फैलेसी है ये चीज़ें. सिस्टमिक थिंकिंग इज रिक्वायर्ड बाय द वे एंड शुड बी इनकरेज. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइक अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही की बात हो रही है ना. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट का एक सिंगल पैरामीटर है, वन पैरामीटर ओनली. डेवलपमेंट के और भी तो पैरामीटर्स हैं as said by various scholars. डेवलपमेंट के बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको इस फिलोसफी से आ भी नहीं रहा, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आएगा भी नहीं इन लॉन्ग रन में जो हमने देखा है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें ये देखना चाहिए कि एक जीरो सम गेम नहीं है, राइट. आप एक पर्टिकुलर डे के टाइम को कहीं पे इस्तेमाल करके और बाकी चीज़ों को जस्ट इंक्रीज करके और कहीं पे कम करके आप जीरो सम जो गेम खेल रहे हैं, ये जीरो सम गेम नहीं है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऑर्गेनिक. अब बात ये आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना कैसे चाहिए. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मॉडल होना चाहिए, अगर हम बात करें मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि सस्टेनेबल होगा फॉर लॉन्ग रन, अकॉर्डिंग टू मी एक ऑर्गेनिसिटी होनी चाहिए ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेयर यू आर नॉट जस्ट वर्किंग लाइफ का स्लेव्स, यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, लाइक यू वांट टू हैव समथिंग पॉजिटिव चेंज अराउंड यू, यू वांट टू बिल्ड थिंग्स टेंजिबल और इंटेंजिबल एंड वांट टू हैव एन ऑर्गेनिक पार्टिसिपेशन विद इन इट. तो कैसे होगा? सो दो चीज़ें, या तो आप इसको मैकेनिस्टिक कर सकते हो, मैकेनिस्टिक, और you have an option to do it through being involved without any burden, है ना. वो बोलते हैं ना कि फ्री शॉट्स खेलना. एक होता है कि रोहित शर्मा, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रोहित शर्मा भी बैटिंग करता है. ही हैज आल्सो स्कोर्ड लाइक 200 प्लस रन्स एंड 264 इफ आई एम नॉट रॉन्ग द हाईएस्ट रन्स. बट वही फ्लो होना इंपॉर्टेंट है वर्क में, वेदर यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम और नॉट. तो दो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होना चाहिए. इट मीन्स कि इफ दीज आर द 3 सर्कल्स ऑफ योर से लाइफ. नाउ फर्स्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स of what you love, right? What you love and what you do and what you can be paid for, right? अगर ये चीज़ें कॉमन हैं, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो कि वही आप करना भी चाहते हो, उसी के लिए आपको अंदर वो भी है, आपको प्यार, आप जो करते हो उसे प्यार भी आप करते हो, यू लव व्हाट यू डू, एंड आप उसके लिए आप ऐसा भी जो भी रिम्यूनरेशन है, सैलरी आप उसी के लिए लेते हो, तो ये ऑर्गेनिसिटी रहेगी. प्रॉब्लम कंट्री में यही है कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो हॉटस्पॉट है, दिस इज द हॉटस्पॉट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस और से एनी काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन इन वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू द एम्प्लॉयमेंट. दिस इज नॉट देयर. ये हॉटस्पॉट इफ यू टॉक टू अ सीईओ आल्सो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इस हॉटस्पॉट में बैठा होगा, राइट. तो बहुत बड़ा ग्लेयरिंग पिक्चर है. द सीईओ माइट आल्सो नॉट बी सिटिंग इन दिस हॉटस्पॉट एंड अ बेसिक से अ पर्सन हु इज अ डेली वेज अर्नर हु वुड बी सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट. हो सकता है वो बैठा हो, वो जो काम कर रहा हो उसे प्यार भी करता हो, वही काम कर रहा है, एंड वो उसके लिए उसको पैसा भी मिल रहा है. सो प्रॉब्लम यही है. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस हॉटस्पॉट है. अब इस हॉटस्पॉट का तो एक तरीका है कि हम खुद डेवलप करें इंडिविजुअल लेवल पे. वे फॉरवर्ड क्या होगा इसमें अगर मैं बात करूँ तो कैसे ये हॉटस्पॉट आएगा? तो वही है वे फॉरवर्ड. सबसे बेसिक वही है. पहले इंडिविजुअल चूज़, जो भी अपने ऑप्शंस हैं उसको अच्छे से चूज़ करें, चूज़ देयर ऑप्शन वाइजली,
है ना, ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, है ना। एक पर्टिकुलर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो तो एक वर्किंग आवर होगा, इफ यू आर इन अ माइनिंग सेक्टर तो आपका वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, यू कैन नॉट ब्लेम द ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू आर इनटू अ काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ सिविल सर्विसेज, वहाँ पे 24 आवर्स ऑफ जॉब है। इफ यू आर इनटू सम काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, वहाँ पे 24 आवर्स ऑफ जॉब है। इफ यू आर इनटू अ पंचायती सिस्टम, वहाँ पे भी अलग कंसेप्ट है। आप कहीं पे भी काम करोगे टुवर्ड्स द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द कंट्री, तो चॉइसेस आपको करना पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पे चॉइसेस इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट एंड स्टेट इंटरवेंशन, ये करने की बहुत ज़रूरत है। कि इंटरवेंशन तो होना ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं है। जो एग्रीकल्चर है दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ जीडीपी, 17% ऑफ जीडीपी आता है, लेकिन कितने लोग इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट है, 50% लोग यही है, दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एग्रीकल्चर हमारा आउटडेटेड है ना, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, दो देयर आर वेरियस चेंजेस आर कमिंग, बट उतना अभी तक नहीं आया है। स्किल्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वी डोंट हैव राइट स्किल्स, है ना। एम्प्लॉयमेंट डेटा कहता है कि अराउंड 50% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जो है, they don't have that much skill, that is a data which speaks volumes of our demographic dividend which we are boasting of everywhere. We need to skill them, otherwise it would become what, डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएगा और बर्डन हो जाएगा, है ना। 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, बट अगर उनको अगर हम सही टाइम में नहीं किया तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर, डेमोग्राफिक बर्डन हो जाएगा। इनोवेशन नहीं है, वर्किंग कंडीशंस, वही बात जो मैं ऊपर यहाँ पे कर रहा था। यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस आर नॉट दैट मच ल्यूक्रेटिव, है ना, ल्यूक्रेटिव नहीं है, तो ये कंसर्न्स हैं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं एड्रेस होंगी तब तक कैसे होगा चीज़ें। तो आपको टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन करना होगा, स्किल्स पे फोकस करना होगा, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बिल्ड करना होगा, ओवरऑल R&D पे फोकस करना होगा, राइट। आपको एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा जनरेट करने पड़ेंगे, है ना, एजुकेशन के थ्रू। सब कोई को डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं बन सकते हैं, सो यू नीड टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करने होंगे सोसाइटी में, राइट। एग्रीकल्चर में किसी को रहना है तो क्या वो R&D कर सकता है, कोई अच्छा अगर बच्चा है उसको पता है चीज़ें, तो क्या वो एग्रीकल्चर में जा सकता है आगे, नहीं कर सकता है तो व्हाट आर द अदर बिजनेस, हॉर्टिकल्चर में कर सकता है। आपको वेरी मच रीजन स्पेसिफिक प्लान्स एंड प्रायोरिटीज रखनी होंगी। ये वर्कर्स का प्रोडक्टिविटी को बस घंटे बनाने से चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी, रादर इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। कोई भी चेंजेस जो फ्रॉम विदिन आता है ना, दैट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। कोई भी चेंजेस आप बाहर से लाओगे तो वो टूट ही जाएगा, है ना। वो एक वाला कंसेप्ट है ना, इफ द एग को अगर फोर्स अंदर से दिया जाए तो अ न्यू लाइफ इज बॉर्न, है ना, एक न्यू लाइफ बॉर्न होगा जिससे मल्टीपल एग्स का पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, है ना, चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। और वही एक को अगर आप एक्सटर्नली आप फोकस करोगे, एक्सटर्नली प्रेशराइज करोगे टू वर्क, सो दिस एग विल ब्रेक। तो चीज़ें वही हैं, वी नीड अ सिस्टमिक थिंकिंग, पूरे सिस्टम को चीज़ को समझने की जरूरत है, मोटिवेशंस, माइंडसेट्स ऑफ द पीपल, व्हाट दे आर थिंकिंग, अ बिट मोर एम्पैथी, क्योंकि इकोनॉमिक इज नॉट द एंड, व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी इज जस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उसको बस क्रिएट करना ही हमारा काम नहीं है ना। द वन हु इज यूजिंग दैट प्रोडक्ट और हु इज यूजिंग दैट सर्विसेज, is that person satisfied or there is a mad race towards just increasing a one sided parameter, a loop sided approach of increasing just the productivity or the economic considerations। यहाँ पे इतनी इक्वालिटी है। लेटर वी विल डिस्कस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बस होने से, दैट टू इन द जीडीपी टर्मिनोलॉजी, क्या हमारा नेशनल लेवल पे चीज़ें ठीक हो रही हैं, नॉट नेसेसरली, क्योंकि इनइक्वालिटी we still have inequality has increased according to various data from PLFS data you can see over the Google periodic labor force survey के डेटा आता है। so चीज़ों को सिस्टमिक वे में लेना ही पड़ेगा to ensure this thing। so just I would like to end this thing by saying कि चिकन एक प्रॉब्लम तो है ही, मतलब आप पहले मतलब इफ नो चिकन एन एक इशू तो है ही। अब चिकन एन एक इशू कैसे है, यही है कि जो नारायण मूर्ति जी ने कहा उनका इंटेंट गलत नहीं रहा होगा। he has worked more than 70 hours per week I think and has created a build an empire which is you can say one of the most important pillar of our entire IT sector, which is situated in the Bengaluru and we call it a Silicon Valley। But just going by his statement, which was not at all, I think if I just look into the statement, a total perspective was not taken into of increasing the worker productivity। Yes, the data also shows that our productivity is very much low, but क्या बस एक वर्किंग आवर्स बढ़ाने से होगा, आई डोंट थिंक सो। चिकन एंड एक इशूज़ है, चिकन एंड एक इशू वही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें चाहिए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे, वर्किंग आवर्स बढ़ा के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी है क्या, नहीं है। तो चिकन एंड एक प्रॉब्लम रहेगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं या पहले हम अपनी कंसिडरेशन जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसको शूट करें, सो दैट मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर्क एंड पार्टिसिपेट इन दिस लेबर फोर्स। पार्टिसिपेशन जो हो वो क्वांटिटेटिव ना हो, क्वालिटेटिव हो, ऑर्गेनिकली दे पार्टिसिपेट इन द रेस्पेक्टिव सेक्टर्स एंड चॉइसेस ऑफ वर्क एंड वर्किंग मेथोडोलॉजीज, अपना अपना सेटिंग से पार्टिसिपेट करें। सो क्लासिक चिकन एंड इशूज़ है, बट वी नीड टू लुक द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्म एज वेल, सो दैट यू कैन reap in good quality of chicken and eggs both in the same farm। तुमको फार्म का पर्सपेक्टिव नहीं छोड़ना है ना। चिकन एंड एग का प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, बट वी शुड नॉट लूज द साइट ऑफ द फार्म, मतलब सिस्टमिक थिंकिंग नहीं करना है। ऐसा मतलब बिना वो किए ये एंड फिट करना पॉसिबल नहीं है। सो दिस वॉज माई जस्ट टेक, इट वॉज जस्ट एन ऑनेस्ट टेक over this issue, which was like a point of bone of contestation between the people nowadays। So if you have heard till this time, so thank you।